की वजह से। तो प्रेगनेंटी फीमेल नॉट प्रेग्नेंट एंड टेकिंग पिल्स अगेन एंड अगेन, सो इट विल इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड ड्यू टू दिस इट मे लीड टू कोलेस्टेसिस। तो कोलेस्टेसिस लीड करता है। एज अ गुड डॉक्टर यू मस्ट नो jaundice due to hemolysis. As a good doctor you must know jaundice may be uptake bilirubin, jaundice may be impaired coagulation, may be intrahepatic, may be extrahepatic, may be extrahepatic obstruction. Okay, as a good doctor you must know whenever hepatocytes are injured, जब हेपेटोसाइट इंजर होता है, ये तो हमने नॉर्मल पढ़ लिया कि इम्पेक्टस क्या होता है, नॉन इम्पेक्टस। जब इंजर होता है तो क्या पढ़ता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्कर व्हिच इज रिलीज बाय लिवर, स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम व्हिच इज नोन एज AST एंड ALT. ALT is known as also known as SGPT. SGPT is known as serum glutamate pyruvate transaminase. Serum glutamate pyruvate transaminase. Serum glutamate pyruvate transaminase mainly increase when there is diabetes, when there is hepatitis, when there is injury. Okay, when there is injury, these are two best marker of what? Marker of hepatocellular injury. Hepatocyte which is very rich in ALT/AST. These are marker of hepatocellular injury. Hepatocellular injury occur. These two marker will be what? Will be, ये क्या होता है, इंक्रीज होता है. ओके, बाइलेरिक, अगर हेपेटोसेलुलर इंजरी यहाँ पर इंजरी हो जाए तो क्या होगा, LT/AST बढ़ेगा. when there is biliary caniculi obstruction or injury, so what marker will be increased? Alkaline phosphatase. Second one is 5-nucleotide peptidase and gamma gluconide transferase. These three markers will be increased. If these three markers is increased, so it means that there is biliary caniculi system obstruction or injury. If AST ALT level is increased or SGPT is increased, it means that there is hepatocellular injury. Okay, you should remember this differentiation. Okay, alkaline phosphate also release other than biliary caniculi system. When alkaline phosphatase or phosphate only increase, but 5-nucleotide peptidase and gamma gluconide transferase is normal, so it means that there is no biliary caniculi injury or obstruction. सुन लो प्लीज, अगर सिर्फ ये अल्कलाइन फास्फेट बड़ा आपको नजर आए और 5-nucleotide phosphatase और gamma gluconide transferase एंजाइम वो नॉर्मल हो, तो इसका मतलब है क्या है, द इंजरी अदर देन लिवर. सही है, प्रॉब्लम अदर देन लिवर है, क्योंकि आपका सिर्फ अल्कलाइन फास्फेट अदर देन लिवर के ऊपर होता है. लेकिन इसमें क्या होता है, ALT और SGPT only released by liver, but AST also released by other tissue. अगर AST लेवल इंक्रीज हो और ALT लेवल क्या हो, नॉर्मल हो, तो इसका मतलब क्या है, अदर देन लिवर है. अगर अल्कलाइन फास्फेट सिर्फ इंक्रीज हो तो इसका मतलब लिवर प्रॉब्लम है. सही है, SGPT सिर्फ लिवर प्रॉब्लम है, लेकिन AST अदर देन लिवर भी क्या होता है, रिलीज होता है. ये दो डिफरेंशिएशन याद रखो. ओके, if liver injury occur, so AST/ALT goes up. LP release by other tissue also. अल्कलाइन फास्फेट क्या होता है, बोन मैरो से भी रिलीज होता है. मे बी बोन मैरो प्रॉब्लम हो सकता है, प्लेसेंटल या GIT प्रॉब्लम भी हो सकता है. अल्कलाइन फास्फेट किस की वजह से होता है, GIT प्रॉब्लम की वजह से भी. अगर सिर्फ 5-nucleotide peptidase और gamma gluconide transferase एंजाइम नॉर्मल हो, ये बड़ा हो, तो इसका मतलब प्रॉब्लम नॉट विद लिवर, प्रॉब्लम मे बी GIT, मे बी प्लेसेंटल प्रॉब्लम, मे बी बोन मैरो प्रॉब्लम. ओके, and there is only increased level of AST, so it means that it is not other problem. A little bit. If alkaline phosphate, gamma gluconide transferase or 5-nucleotide phosphatase, these three marker of biliary caniculi system है. सही है. अगर कोई पर्सन क्या हो, if a person has only GGT, gamma gluconide transferase enzyme, किसी पर्सन में सिर्फ ये बड़ा हुआ हो, तो इसका मतलब क्या है, this person is अल्कोहल यूजर.
सही है, इसका मतलब ये क्या है, दिस पर्सन इज अल्कोहल यूजर। सही है, इसमें सिर्फ ये बड़ा हो और ये दोनों क्या हो, एक्सक्यूज मी, ये क्या हो, नॉर्मल हो, तो इसका मतलब क्या है, दिस पर्सन इज अल्कोहल यूजर। आर कैनिकुलाई इंजरी है, मार्कर ऑफ हेपेटोसेलुलर इंजरी इज एसटीएलटी। मोर स्पेसिफिक क्या है यहाँ पर, इसमें लीवर इंजरी में मोर स्पेसिफिक कौन सा है, एसजीपीटी या एएलटी है। सही है, if only AST goes up it means a problem other than liver, if your liver not work for short time, अब अगर आपका लिवर शॉर्ट टर्म के लिए वर्क ना करता तो क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम विल बी प्रोलॉन्ग, बट क्या है, तो क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम विल बी डिफेक्टेड। सो इस किस्म के पेशेंट को हम क्या देते हैं, विटामिन के देते हैं। सही है, इट्स वेरी वेरी इजी टू रूल आउट, इफ यू इंजेक्ट विटामिन के द पर्सन एंड वेट फॉर 24 आवर्स, इंजेक्ट करते हैं विटामिन के, अगर शॉर्ट टाइम के लिए इंजरी हो तो विटामिन के इंजेक्ट करते हैं और 24 आवर्स के बाद इसके प्रोथ्रोम्बिन टाइम को देखते हैं। अगर क्या है, if you normalize, if you find that the prothrombin time is not prolonged, it is normalized, so it means that it was due to deficiency of vitamin K. If not, that it may be that it means that it is the synthetic problem of liver. इसका मतलब क्या है, अगर 24 घंटे के बाद ये आपको नॉर्मल नजर ना आए तो इसका मतलब क्या है, इट इज द सिंथेटिक प्रॉब्लम ऑफ द लिवर। तो ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो इसमें हम फर्स्टली क्या देते हैं, विटामिन के देते हैं। आफ्टर 24 आवर्स हम चेकअप करते हैं, जब हमको नॉर्मलाइज मिल गए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नॉन सिंथेटिक प्रॉब्लम। जब नॉर्मलाइज ना मिले तो इसका मतलब सिंथेटिक प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम है। कोगुलेशन फैक्टर क्या है, शॉर्ट हाफ लाइफ टाइम है। सही है, ड्यू टू दिस आफ्टर शॉर्ट इन्फेक्शन प्रोथ्रोम्बिन टाइम विल बी प्रोलॉन्ग but albumin will not goes down and short injury में albumin goes down नहीं, क्योंकि इसका long half life time है। सही है, if someone has reduced synthetic capability for long time it means that hypoalbuminemia occur। जब long time के लिए इंजरी होगा लिवर का तो इसका मतलब या इन्फेक्शन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अल्बुमिन लेवल भी क्या होगा, कम होगा। हाइपोअल्बुमिनिमिया जब मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, दिस पर्सन हैज क्रोनिक प्रॉब्लम नॉट एक्यूट। ओके, तो if someone severe hemolysis, अभी कुछ सिनेरियो पढ़ते हैं, बस 1 पेज होंगे। अगर पास एक में क्या है, सीवियर हेमोलाइसिस होगा तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको क्या होगा, एचबी लेवल क्या होगा, कम मिलेगा। आरबीसी काउंट क्या होगा, हाँ आरबीसी काउंट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। हाँ, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या होगा, इंक्रीज होगा। कंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। सही है, सीरम एएसटी और एएलटी आपको क्या मिलेगा, एएसटी एएलटी आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल है, क्योंकि बाइलियरी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, क्या है, सीवियर हेमोलाइसिस है, बाइलियरी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इसकी वजह से आपको यूरिनोबाइलिरुबिन क्या मिलेगा, यूरिनोबाइलिरुबिन क्या मिलेगा, बढ़ेगा क्या नॉर्मल होगा, हाँ यूरिनोबाइलिरुबिन क्या मिलेगा, ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या है, हाइपर है। अस्ट्रोकोबाइलिरुबिन भी क्या होगा, बाइलिरुबिन वो भी बढ़ के नजर आएगा। इट इज ड्यू टू एक्सेसिव हेमोलाइसिस, इट इज ड्यू टू एक्सेसिव हेमोलाइसिस unconjugated bilirubin going to GIT, so production of astrocobilirubin will be increased and also urinobilirubin will be increased. अगर आपको यूरिनोबाइलिरुबिन और अस्ट्रोकोबाइलिरुबिन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, व्हाट्स इट्स मीन, इट्स मीन दैट द कंजुगेटेड बिलिरुबिन हैज नॉट come into your GIT system. When it will not be come into your GIT system, where the urinobilirubin is formed in your GIT by bacterial protease enzyme इसको बनाता है। जब यूरिनोबाइलिरुबिन एब्सेंट होगा तो इसका मतलब क्या है, इन द यूरिन, तो इसका मतलब क्या है, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली तौर पर आपका कंजुगेटेड बिलिरुबिन डायरेक्टली कहाँ जाएगा, रिगर्जिटेट इनटू योर सर्कुलेशन, तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन हाई होगा। सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ एक्सेसिव हेमोलाइसिस है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन नॉर्मल है, एएसटी एएलटी क्या है, नॉर्मल है, यूरिनोबाइलिरुबिन क्या इंक्रीज है, अस्ट्रोकोबाइलिरुबिन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अभी दूसरा केस है, if someone has hepatocellular injury, बाद में क्या है, यहाँ पर हेपेटोसाइट लेवल पर इंजरी हो
तो इसमें क्या होता है, नो फीचर ऑफ हेमोलाइसिस होगा, हेमोलाइसिस होगा नहीं होगा, नो फीचर ऑफ हेमोलाइसिस होगा, तो टोटल बिलिरुबिन लेवल इसमें क्या होगा, हेपेटोसेलुलर इंजीनियरिंग में टोटल बिलिरुबिन लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा, सही है, ज्यादा होगा। अनकंजुगेटेड